तो मोमेंटम के बारे में आप कुछ जानते हैं? व्हाट इज मोमेंटम? Sir, product of mass and velocity. Product of mass and velocity. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। P is equal to mv. और इसी तरह हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है, उसमें हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। Omega बट r, omega m r. ठीक है, तो उसमें फिलहाल हम लीनियर मोमेंटम ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। So the linear momentum of a particle that is equal to product of mass and velocity. It is a vector quantity. It has magnitude as well as direction. और ये उसके dimensions हैं, ये उसकी units हैं, and it can be expressed in the component form, x component, y component, z component, ठीक है। अभी तक हमने जो मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम पढ़े हैं, तो एक तो उसमें काइनेमेटिक्स है, ठीक है। फिर उसमें फोर्स की जब इन्वॉल्व में आ जाती है तो उसमें न्यूटन लॉज आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक और मेथड पढ़ा एनर्जी का, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने पढ़ा कि किस तरह हम एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके आइसोलेटेड सिस्टम, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया एक और मेथड, दैट इज द मोमेंटम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से हम अपने प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास है सिग्मा एफ दैट इज इक्वल टू एम ए, और एक्सेलरेशन को अगर मैं इस तरह लिखूं डी वी और डी टी, और मास कांस्टेंट है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, और इस तरह भी मैं इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, विथ मास क्या है, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि हमारे पास सिग्मा एफ दैट इज इक्वल टू एम ए, और ए को हम डी बाई डी टी और इस तरह जब करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू resultant force or net force or summation of force or the total force, ठीक है। So Newton's second law, the time rate of change of the linear momentum of a particle is equal to the net force acting on the particle. This is the form in which Newton represented the second law. It is a more general form than the one we used previously. This form also allows for the mass changes. Application to system of particles are particularly more powerful. So when two or more particles in an isolated system interact, the total momentum of the system remains constant. So the momentum of the system is conserved, not necessarily the momentum of an individual particle. एक दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो सिस्टम है, सिस्टम में जो दो पार्टिकल हमने लिए हैं, तो दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल या टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट विल नॉट बी चेंज, ठीक है। इंडिविजुअली उसमें चेंजेस आ सकती है, मोमेंटम में चेंजेस आ सकती है, लेकिन सिस्टम की जो मोमेंटम है दैट विल बी कांस्टेंट। So this also tells us that the total momentum of an isolated system equals its initial momentum. Mathematically, we can express it as P total that is equal to P1, P2, that is constant, or we can say that initial momentum that must be equal to the final momentum. Okay? So this is the particle 1, this is the particle 2. I subscript denote for the initial,
F is for the final. Okay. So in the component form, the total momentum in each direction are independently conserved. Okay. So you can say that initial momentum in X direction, that must be equal to the final momentum in X direction. This is for the system, not for the individual particle, for the system. Similarly, in Y direction, initial momentum must be equal to the final momentum. Z direction, initial momentum must be equal to the final momentum. So conservation of momentum can be applied to systems with any number of particles. सिर्फ दो के लिए नहीं, बल्कि दो से ज्यादा भी अगर आपके पार्टिकल्स आते हैं तो उस पे भी अप्लाई हो सकता है. This law is the mathematical representation of the momentum version of the isolated system model. सर ये पॉइंट 2 रिपीट कर दें. Point 2 ये वाला कंपोनेंट फॉर्म. कंपोनेंट फॉर्म. अगर आपका 3 डायमेंशनल केस है, लीनियर एक लाइन में नहीं है, 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, जो मोशन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन वो प्योरली एक्स और वाई जेड डायरेक्शन में नहीं है. ठीक है. सो यू कैन मेक द कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी, उसके एक्स और वाई और जी कंपोनेंट जब आप करेंगे तो मोमेंटम को फिर आप कहेंगे कि एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्व होगा, वाई डायरेक्शन में भी कंजर्व होगा और जेड में भी कंजर्व होगा. ठीक है. तो इंडिविजुअली आप सेपरेटली आप डिफरेंट डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है. ठीक है. नॉट कलेक्टिवली कि हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे या क्या नहीं, बल्कि इंडिविजुअली एक्स डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व होगा, वाई में भी कंजर्व होगा और जेड में भी कंजर्व होगा. ठीक है. यस सर. ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, द आर्चर स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. मैं इसको थोड़ा बुक से खोल लेता हूं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं है. ये एग्जांपल 9.1 है. ठीक है. इसमें है कि लेट अस कंसीडर द सिचुएशन प्रोपोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेक्शन 9.1. A 60 kg archer stands at rest on frictionless ice and fires a 0.5 kg arrow horizontally at 50 meters per second. With what velocity does the archer move across the ice after firing the arrow? ठीक है. अब यहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो यही है कि जो मास ऑफ द पर्सन है दैट इज 60 kg. ठीक है. और जो फ्रिक्शनलेस आइस पे है, फ्रिक्शन की कोई वो नहीं है, जो एरो है उसका आपको मास गिवन है. ठीक है. और उसकी जो स्पीड है वो भी आपको गिवन है. So now with what velocity does the archer move across the ice after firing the arrow? अब यहाँ पर आप कहते हैं कि मैं अगर कोई और मेथड यूज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप लगाना चाहते हैं. ठीक है. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है कि इस डिफॉर्मेशन की वजह से, ये जो हमारे डिफॉर्मेशन है इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. ठीक है. देन इट इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी जब उसको हम छोड़ते हैं. ठीक है. तो उस तरीके से हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है कि इस बंदे की जो वेलोसिटी है उसको हम कैसे मालूम करें. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है. ये तो जब फायर होगा तो एज अ रिएक्शन ये पीछे की तरफ थोड़ा स्लाइड होगा. ठीक है. तो
इनिशियली आपका जो मोमेंटम है, ठीक है, so initial momentum before firing the arrow और आफ्टर फायरिंग द एरो, ठीक है। और इस सिस्टम में आपका क्या है, सिस्टम में कौन कौन से पार्टिकल है, पार्टिकल तो नहीं है, ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। Person and ये the arrow. पर्सन है, ये पर्सन है, बो है और आपका एरो है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक सिस्टम है। नाउ बिफोर फायरिंग इन सब की मोमेंटम क्या है, ठीक है। बिफोर फायरिंग हमारे पास इसकी वेलोसिटी भी जीरो है और आफ्टर जो एरो की वेलोसिटी है वो भी जीरो है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है, जीरो। आफ्टर फायरिंग द एरो हमारा जो एरो की जो हमारी स्पीड है वो तो गिवन है, ठीक है। But this must be also equal to zero because of, according to the law of conservation of momentum, initial momentum plus that is equal to the final momentum, ठीक है। So initial momentum हमारा क्या है, वो जीरो है। So final क्या होगा, वो भी that will be equal to zero. So यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई ऑप्शन है, वरना तो फिर मैं इधर सॉल्व कर लूँगा। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल m1 v1 प्लस m2 v2 i, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू m1 v1 f प्लस m2 v2 f. So 1 is the person and 2 is the arrow. Okay. So initial velocity that is equal to 0. So 0 और arrow की before releasing the arrow उसकी velocity भी हमारे पास 0 है। और m1 v1 f प्लस m2 v2 f, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से मास ऑफ द एरो भी हमें मालूम है, मास ऑफ द पर्सन भी मालूम है, मास ऑफ द एरो भी मालूम है, वेलोसिटी ऑफ द एरो भी हमें मालूम है। सो वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी बाय m1, ठीक है। सो यू कैन सी दैट द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन दैट इज नेगेटिव। अगर एरो इस डायरेक्शन में हमारे पास मूवमेंट करता है, ठीक है, तो हमारे पास जो पर्सन है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज व्हाई जब हम उसको सम अप करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 0 कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनिशियली भी मोमेंटम 0 है और आफ्टर रिलीजिंग द एरो फिर भी हमारे पास ये 0 है। तो उसकी मदद से हमने जो वेलोसिटी ऑफ द पर्सन है उसको हमने मालूम कर दिया। सर ये जो ठीक है। गन रिकॉइल होती है सर, इसमें भी यही केस है? बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप डिफरेंट सिनेरियोज में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू कैटेगराइज दैट व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज दिस। आपने सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होगा, सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर हम आगे मोमेंटम की क्लासिफिकेशन करते हैं, ये कौन सा मोमेंटम है, ठीक है। आया ये इलास्टिक है
या ये इनइलास्टिक है, ठीक है, या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो ये भी जरूरी है आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा मोमेंटम है ये, ठीक है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो आगे की स्लाइड में हम उसकी क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो आप किसी भी प्रॉब्लम पे जहां पर आपकी कोई वेलोसिटी है, मूवमेंट है, वेलोसिटी आ रही है, तो आइडेंटिफाई करके कि इस पे कौन सा मोमेंटम का इक्वेशन लगेगा, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने एनर्जी को यूज किया, तो आप मोमेंटम को भी यूज कर सकते हैं। So you have to conceptualize the arrow is fired one way and the archer recoils in the opposite direction. Categorize momentum. You have to identify the particles. What are the objects? What are the particles? There are no external forces in the x direction, so it is isolated in terms of momentum. कोई external force हमारे पास नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये एक isolated system है। अगर हमारे पास कोई external force लगती है, तो फिर वो नॉन आइसोलेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो एनालाइज टोटल मोमेंटम बिफोर रिलीजिंग द एरो इज 0, और आफ्टर रिलीजिंग भी हमारे पास 0 है, जिसकी वजह से हम फिर अननोन को मालूम कर लेते हैं। तो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द आर्चर दैट इज नेगेटिव, so indicates he moves in a direction opposite to the arrow. So the archer has much higher mass than arrow, so velocity is much lower. उसकी 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जो एरो है उसकी आपके पास है 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका जो मास है वो है 0.5, ठीक है। तो डिवाइड बाय द पर्सन मास, फॉर एग्जांपल ये 60 केजी है और ये 0.5 केजी है, तो ऑब्वियसली इट विल बी रिड्यूस्ड, ये आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और 25 और 60 आप देख 8 point something आएगा सर ये। जी। इम्पल्स एंड मोमेंटम, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक, तो फिर वो आपका नॉन आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए को हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि फोर्स दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और इसको अगर हम इस तरफ ले आए, ठीक है, और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर लें by putting the limits of initial and final momentum, or putting the limit of initial time and the final time. So rate of change in momentum, that will be equal to F into dt, ठीक है, जिसको हम कहते हैं impulse. So the integral is called the impulse of the force acting on an object over delta t. तो जब भी हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, उसको हम कहेंगे कि ये एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो दिस इज द मोमेंट एंड इम्पल्स थ्योरम दैट I is equal to delta P. So the impulse of the force acting on a particle equals the change in the momentum of the particle. So that applies for the non-isolated system, ठीक है। सर इम्पल्स को जरा थोड़ा और मतलब करेंगे, इसके ऊपर जरा रोशनी डालेंगे थोड़ी और। हाँ, इसको जरा और डिफाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है,
और द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व, क्योंकि इसमें हमने कहा ना कि एफ डेल्टा टी एफ डी टी, ठीक है। तो ये अगर आपको याद होगा तो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की केस में भी कहा था कि अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, तो दैट एरिया अंडर द कर्व दैट विल बी कॉल्ड द वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है फोर्स और टाइम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा पैरामीटर है वो डिस्प्लेसमेंट की बजाय हमारे पास है टाइम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स और इंटरवल ऑफ टाइम, किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम में जब फोर्स उस पे लगता है तो उसका जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स, ठीक है। और इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, ये प्रॉपर्टी नहीं है, बट इट इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। क्योंकि इम्पल्स को हमने डिफाइन किया कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो कोई भी फोर्स लगता है फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम दैट विल रिजल्ट्स इन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई भी फोर्स लगता है और सम इंटरवल ऑफ टाइम दैट विल रिजल्ट्स इन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। सर इसका मतलब ये है कि अगर चेंज इन मोमेंटम बहुत मतलब इम्पल्स अगर ज्यादा है तो चेंज इन मोमेंटम बहुत कम टाइम में हुआ है, और अगर इम्पल्स अगर कम है तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा टाइम में हुआ है। सर इसका मतलब ये होगा? टाइम तो देखें ना, यहाँ पर जो आई दैट वाज इक्वल टू एफ डी टी, तो अगर टाइम जितना ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपका इम्पल्स भी ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। तो नहीं सर, जितना अगर एरिया सर अंडर दिस कर्व विल बी मैक्सिमम, जितना ये बड़ा होगा और जितना आपका ये हाइट जितनी बड़ी होगी उतना आपका इम्पल्स ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, यूजुअली हम कहते हैं कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं कि वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगते हैं, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है या मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कार्स वगैरह, उसकी कोलिजन होती है, ठीक है, आपस में टकराते हैं, तो हम कहते हैं कि दैट अकर्स फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसमें जो टाइम है वो बहुत कम है, लेकिन जो बाकी फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, या वो उसके मुकाबले में इंतहाई कम होती है, ठीक है। तो उसमें हम जो फोर्स यूज करेंगे एनालिसिस के लिए, फिर वही फोर्स होगा जो इस कोलिजन के दौरान या क्रिएट हुआ है या किसी दीवार के साथ लगा है और दीवार का रिएक्शन फोर्स उस पर लगा है, ठीक है। तो सर यूजुअली इम्पल्स सर इम्पल्स को हम सिर्फ ये मतलब सिर्फ ये कह सकते हैं कि इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स की वजह से हमारे पास जो उसका इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर वो है आपका रेट इन चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। जब भी इम्पल्स फोर्स होगा तो आपके पास जो चेंजेस आएगी सिस्टम में, उसकी मोमेंटम में चेंजेस आएगी, ठीक है। मालूम करने का एक तरीका ये भी है कि आप एवरेज फोर्स को मालूम कर लें, ठीक है। और जो एवरेज का ये एक अप्रोक्सीमेशन है कि आप आसानी से उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि अगर इस तरह आपका शॉर्ट इंटरवल पे एक फोर्स अप्लाई हुआ है, तो यू कैन फाइंड आउट by the average force. For example, this is the highest force, this is the lowest force, so average force is in between them. So the average force for that particular interval of time, तो हम कहते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया of rectangle, that is equal to the area of this curve, ठीक है, एरिया ऑफ कर्व। तो इसमें हम ये अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि
इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं आसानी से कि जो इम्पल्स है वो कितना है, ठीक है। सो बाय कंसिडरिंग द एवरेज फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स हम लेते हैं, तो वेरिएशन है ना, वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ फोर्स अक्रॉस द टाइम, ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, फिर हमारे पास डिक्रीज आ रहा है। तो यू कैन एज्यूम, यू कैन अप्रोक्सीमेट द कांस्टेंट फोर्स विच इज द एवरेज फोर्स, ठीक है, और उसके अंडर आपका जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस कर्व, ठीक है, जो इस कर्व के नीचे जो एरिया होगा उसके इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से हम इम्पल्स को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। सर ये तो सिर्फ एक स्पेशल केस के लिए होगा ना, नहीं, किसी कि भी जिस केस के लिए हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं जिसमें क्योंकि हमारे पास हर जगह तो फोर्स इस तरह वेरी नहीं करेगी जिस तरह इस ग्राफ में वेरी कर रही है, पहले इंक्रीज हुई है हाँ, फिर डिक्रीज हुई है। स्पेशली व्हेन द टाइम इंटरवल इज टू मच स्मॉल, ठीक है, टाइम इंटरवल अगर स्मॉल होगा इस तरीके से, तो उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं। ये अजान का थोड़ा वक्फा करते हैं, फिर यहाँ पर थोड़ी सी तो 4 बजे आ स्लाइड जाएंगे ब्रेक। फिर। अभी क्या टाइम है? 5-7 मिनट कर लें। नहीं सर, 4 बजे जमात होती है, थोड़ा लेट कर लें। तो आप 5 मिनट करें, आप 4 मिनट से 5 मिनट पहले छुट्टी दे 4:15 पे यार, ठीक है। दें। नहीं नहीं, बस ये अजान हो जाए फिर उसके बाद आते हैं। तो 4 बजे तक तो कर देंगे काम करो। सर आप 3:55 पे दे देना छुट्टी, 4:15 तक। ये आ जाते हैं 3:50 पे आ जाएं, ठीक है, 3:42 है, 50 पे आ जाएं, ओके ये सर, अजान वगैरह हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू।
Okay, welcome back. Yes, sir. So we were talking about the impulse force. So impulse approximation क्या है? Impulse approximation means कि अगर हमारे पास दो या दो से, if we have many forces acting on a particles, so maybe there is a force which is higher than the other forces, and it applies for small interval of time, but that is much greater than the other forces present. So we can say, we can use that impulse approximation. For example, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया है कि कोलिजन है, कोलिजन में अगर हमारे बाकी फोर्सेस हैं तो उसको हम नहीं देखते, बल्कि हम कहते हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास मोमेंटम में चेंज आ गया है, तो दैट इज द फोर्स दैट इज व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द कोलिजन. ठीक है, so which apply for short interval of time. ठीक है, और जो कि ज्यादा हो बाकी फोर्सेस से, तो हम ये अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि मोमेंटम में जो चेंज आया है दैट इज ड्यू टू दैट फोर्स. ठीक है, और उस फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स. तो द पार्टिकल इज assumed to move very little during the collision. Pi and Pf represent the momenta immediately before and after the collision. तो जब भी हम मोमेंटम कोलिजन की केसेस में हम जब मोमेंटम को एनालाइज करते हैं तो हम कहते हैं जस्ट बिफोर द कोलिजन which is the initial momentum, and just after the collision which is the final momentum. ये एक और एग्जांपल है बुक में गिवन है. You have to find out the impulse force, you know the initial velocity, and if you know the final velocity as well, so you can find out the impulse force, because the change in momentum, that is equal to the final momentum minus initial momentum. The difference of that will be the impulse force which is exerted by the wall on the car, or we can look it in the book. अगर हम इसको बुक में देख लें, तो ये उसका वेट गिवन है. ठीक है, इनिशियल, and if the collision lasts ठीक है, so you know the initial velocity, you can find out initial momentum, you can find out final momentum. So the difference of momentum, that will be the impulse force, and if you know the delta t, which is the time of collision, so you can find out the force exerted by the wall on the car. यहाँ पर कुछ सिनारियो अगर हम चेंज करते हैं कि व्हाट इफ द कार डिड नॉट रिबाउंड फ्रॉम द वॉल. यहाँ पर तो फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है कि दिस इज इन द वन डायरेक्शन, दिस इज इन द अदर डायरेक्शन, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. तो अगर हमारी ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, so what will be the effect? Suppose the final velocity of the car is 0 and the time interval of the collision remains same. What that represent, larger or a smaller net force on the car? ठीक है, तो उस केस में आप देखेंगे कि हमारे पास जो इम्पल्स है that will be equal to 2.25 into 10 raised to the power 4. ठीक है, तो ये आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कम हो गया. ठीक है, और डेल्टा टी से जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो फोर्स है
वो भी कम हो गया, ठीक है। तो फॉर रिबाउंड्स आपको ज्यादा फोर्स करने की जरूरत है, रिबाउंड्स नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि फोर्स आपका कम लग गया है। कोलिजन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो कोलिजन किसे कहते हैं? An event during which two particles come close to each other and interact by means of forces may involve the physical contact, but must be generalized to include cases with interaction without physical contact. For example, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट भी हो। तो कोलिजन मैक्रो लेवल पे भी हो सकती है, कोलिजन माइक्रो लेवल पे भी हो सकती है, एटम्स में भी हो सकती है, एटॉमिक लेवल पे भी हो सकती है, और मैक्रो लेवल पे भी कोलिजन हो सकती है। So the time interval during which the velocity changes from its initial to final value is assumed to be very short. तो टाइम इंटरवल है कोलिजन में, हम कहते हैं कि that is very short. The interaction forces are assumed to be much greater than any external forces present. This means the impulse approximation can be used, because in impulse approximation we say the time interval is quite small. It may be result of the direct contact or direct, अगर इस तरह है तो इसमें हमारे पास फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन फील्ड की वजह से हमारे पास पार्टिकल्स कोलाइड कर जाते हैं। टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड हो, ठीक है। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन अकर्स ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, एट एटॉमिक लेवल, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल। In macroscopic collision, only approximately elastic collision actually occurs, ठीक है। मैक्रो लेवल पे अगर हमारे पास कोई कोलिजन होती है तो उसमें हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, यानी कुछ चीजों को हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं और उनको हम कंसिडर नहीं करते। तो यूजुअली फॉर एग्जांपल हमारे पास बिलियर्ड बार्स है, बिलियर्ड बॉल्स, ठीक है, वो जब कोलाइड करते हैं तो एक ठक की आवाज आती है, तो दैट इज सम एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ठीक है। तो हम उसमें कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल एनर्जी, अगर हम उस साउंड एनर्जी को हम नेग्लेक्ट कर लें तो फिर हम कहते हैं कि इट इज कंजर्व। या कुछ केसेस में हमारे पास डिफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो डिफॉर्म हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्सेस, तो उस केस में भी हम हमारी कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, तो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज नॉट इक्वल। फॉर एग्जांपल कोई रबर अगर बॉल है, ठीक है, और उसमें हवा थोड़ी कम है, तो जैसे ही वो बाउंस करता है किसी हार्ड सरफेस पे, आप उसको बाउंस करते हैं, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट विल नॉट बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इस तरह ये डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, जब ये हिट करता है तो इट बिकम डिफॉर्म्स। तो जहां पर हमारे पास डिफॉर्मेशन और साउंड बहुत ज्यादा हो तो उसमें फिर हम कहते हैं कि जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक कोलिजन है। अगर कम है तो हम कहते हैं कि इट इज नेग्लिजिबल, तो उसको हम अप्रोक्सीमेट कर ले सकते हैं और हम उसको इलास्टिक कंसिडर कर लेते हैं। अगर ज्यादा है so that is the inelastic collision. So in that case kinetic energy is not conserved. Momentum तो conserved होगा लेकिन
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। कंजर्वेशन मीन्स कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट विल नॉट बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और कंजर्व होगा तो फिर हम कहेंगे कि दैट आर इक्वल। so this is the conservation. Similarly for momentum, अगर हमारी इनिशियल मोमेंटम इट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो फिर हम कहेंगे कि मोमेंटम इज कंजर्व। अगर फाइनल और इनिशियल बराबर ना हो तो फिर कंजर्वेशन नहीं होगी, इसका मतलब है। तो इन इलास्टिक की केस में हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। फिर इसी की एक और किस्म है जिसको हम कहते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन इट इज अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक ऑब्जेक्ट है दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल स्टिक हो गया, ठीक है, और दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि दिस इज द परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो सर, इसकी मेजरली एग्जांपल क्या हो सकती है? इन परफेक्टली इन इलास्टिक की यस सर। अभी इसमें हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे परफेक्टली इलास्टिक की टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बुलेट। एक एग्जांपल है, और वैसे भी फॉर एग्जांपल कोई हाई मास है, ठीक है, सर अगर बॉल को हम सैंड पर मारें तो वहां से रीबाउंस तो नहीं होगा ना, तो वो हाँ परफेक्ट इलास्टिक होगा। बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक होगा, बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक होगा, ठीक है। ठीक है सर। In elastic collision, some kinetic energy is lost, but the object do not stick together, ठीक है। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में वो स्टिक हो जाता है। इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आर लिमिटिंग केसेस। मोस्ट एक्चुअल कोलिजन फॉल इन बिटवीन दीज टू टाइप्स, यानी कि इनइलास्टिक। मोस्टली हमारी जो कोलिजन होती हैं वो होती हैं इनइलास्टिक। तो हम उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन करके या कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स हैं इलास्टिक कोलिजन की, जिस तरह हमने बात की इलास्टिक में कि एटॉमिक लेवल पे होती है, और परफेक्टली इलास्टिक जिस तरह आपने एक एग्जांपल करी है, तो इस तरह की एग्जांपल्स बहुत कम है। मोस्टली जो हमारी कोलिजन होती है तो उसमें डिफॉर्मेशन भी होती है और उसमें साउंड भी हमारे पास जनरेट होता है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, बल्कि वो किसी और एनर्जी में भी डिसिपेट हो जाती है, हीट में डिसिपेट हो जाती है, साउंड में डिसिपेट हो जाती है, डिफॉर्मेशन में डिसिपेट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स बहुत रेयर है, बहुत कम है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलती है। लेकिन जो बुनियादी बात है कि हर किस्म की कोलिजन में आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, ठीक है, मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में आप देख रहे हैं कि बिफोर कोलिजन उसकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैं v1i v2i, ठीक है, लेकिन फाइनली आफ्टर कोलिजन बोथ द मासेस है सेम वेलोसिटी, ठीक है, उनकी जो वेलोसिटी है दोनों की वो सेम है। इलास्टिक कोलिजन में आपके पास है कि मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, ठीक है। So this is the initial kinetic energy of object 1 plus initial kinetic energy of object 2, that will be equal to the final kinetic energy of object 1, final kinetic energy of object 2.
Typically, there are two unknowns to solve for, and so you need two equations. The kinetic energy equations can be difficult to use. With some algebraic manipulation, a different equation can be used. दोनों इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज करके एक और इक्वेशन उसमें से हम डिराइव कर लेते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है. काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लेंथी है, तो उसको हम जब थोड़ा सा रीअरेंज करके डिफरेंट टर्म्स को रीअरेंज करते हैं और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन को भी हम यूज़ करके, तो ये हम एक और इक्वेशन को डिराइव करते हैं और उसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं डायरेक्टली. This equation along with conservation of momentum can be used to solve for the two unknowns. It can only be used with a one-dimensional elastic collision between two objects. ये उसकी लिमिटेशन है कि this is used only for the one dimension. अगर आपके पास 3 dimension केस है तो फिर आपको x और y और z में आपको करना पड़ेगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं. डिफरेंट केसेस हैं कि अगर दोनों मासेस बराबर हो और कोलिजन हो जाए तो क्या होगा. द पार्टिकल्स एक्सचेंज वेलोसिटीज, जो वेलोसिटीज हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी. सिमिलरली अगर हेवी पार्टिकल कोलाइड ऑन अ वेरी लाइट, so the heavy particle continues in motion unaltered and the light particle rebound with a speed of about twice the initial speed of the heavy particle. इसी तरह लाइट अगर कोलाइड होता है हेवी से, so what will be the result? So during solving the problem, you have to conceptualize the problem, image the collision occurring in your mind. You have to draw the diagram of the particles at how collision occurs. Include appropriate velocity vectors. You have to identify that what is the direction of velocity of each particle. Then you have to find that whether the system of particle is isolated or non-isolated. Is the collision elastic, inelastic, or perfectly inelastic? So by categorizing these, then you can move forward to analyze the problem, and you can find out the unknowns. You can finalize your answer, that whether your answer are consistent with your mental and pictorial representation. This is one of the example. और इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि इस तरह ये 4 और 5 बॉल्स हैं, ठीक है. उसमें से अगर हम एक को इस तरह ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, एंड देन वी रिलीज इट, सो व्हेन इट हिट द बॉल, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट. क्या रिजल्ट होगा जब ये इन बॉल्स को हिट करेगा. सर सबसे साइड वाली बॉल जो है वो मूव करेगी ऊपर की तरफ, वो मूव करेगी, ठीक है. तो क्वेश्चन ये है कि अगर 2 बॉल मूव करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं. अगर हम कहते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट खोल लेता हूँ. In an ingenious device that illustrates the conservation of momentum and kinetic energy is shown in figure. It consists of 5 identical hard balls supported by strings of equal lengths. When ball 1 is pulled out and released after the almost elastic collision between it and ball 2, ball 1 stops and ball 5 moves out as shown in the figure. ये है यहाँ जब ये हिट करता है तो आखिरी बॉल ये भी इस तरह मूव आउट हो जाता है. If ball 1 and 2 are pulled out
and released. They stop after the collision and ball 4 and ball 5 will swung out and so forth. ठीक है, अगर दो बॉल हम इस तरह पुल आउट करते हैं और फिर उसको हम रिलीज कर लेते हैं तो क्या होगा कि आखिरी जो दो बॉल हैं वो हमारा अपोजिट साइड पे मूव कर जाएंगे. ठीक है, Is it ever possible that when ball 1 is released, it stops after the collision and ball 4 and ball 5 will swing out on the opposite side and travel with half the speed of ball 1 as in figure shown? क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम एक बॉल को रिलीज करें और फिर जब वो कोलिजन करे बॉल 2 के साथ और हमारे पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि दो बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ v1 ओवर v ओवर 2 वो हमारे पास क्या हो जाए, इस तरह हो जाए. क्या ये पॉसिबल है या नहीं? मैथमेटिकली वी हैव टू प्रूव इट. हम उसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है? सर ये पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए ना, तो वेलोसिटी सेम होगी तभी मोमेंटम कंजर्व होगा. ये अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करते हैं, ठीक है, और हम इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस इज ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन की केसेस में हमारी जो कंडीशंस है वो क्या है कि मोमेंटम कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी. तो अब देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम क्या है बिफोर कोलिजन, कि इसकी तो जीरो है ना क्योंकि ये स्टेशनरी है. तो दिस इज इक्वल टू mv और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी जीरो है और इसकी वेलोसिटी v ओवर 2 है. ठीक है, सो मासेस दो हैं, सो 2m इंटू v ओवर 2, तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, सो mv विल बी इक्वल टू दी mv. ठीक है, तो मोमेंटम तो ठीक है, कंजर्व है. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, the total momentum of the system of the collision would be mv over 2 plus mv over 2, so that will be equal to mv. लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी 1 over 2 mv स्क्वायर है एंड दैट आफ्टर द कोलिजन इज 1 over 2 mv over 2, तो दैट इज इक्वल टू 1 over 4 mv स्क्वायर. ठीक है, so initial kinetic energy that is not equal to the final kinetic energy. So if we say this is elastic collision, so we say it is not possible. Okay, the kinetic of energy of the system is not conserved, which is inconsistent with our assumption that the collision are elastic. ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर हम कहते हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है. ये जो हमने कह दिया शुरू में कि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है. इसी प्रॉब्लम को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, कहते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ बॉल 4 एंड बॉल 5 आर ग्लूड टुगेदर. अगर दोनों को ग्लू किया जाए, कि दोनों को बिल्कुल एडहेसिव के जरिए से उसको, so now what happen when ball 1 is pulled out and released? अब क्या होगा? ठीक है, तो जब हम इस पे यूज करेंगे, तो P1 that is equal to PF, इनिशियल क्या है m1v1i, और इनिशियली इसकी जो 4-5 की वेलोसिटी है वो तो जीरो है, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा. तो दिस इज ओनली विद द ऑब्जेक्ट 1, और फाइनल ऑब्जेक्ट 1 की भी कुछ वेलोसिटी है और 4 और 5
उसकी भी वेलोसिटी होगी और मासेस उन दोनों की डबल हो जाएगी। और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वी फाइंड आउट दैट द वेलोसिटी ऑफ द वन दैट इज इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, एंड 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो जो बॉल आ रहा है रिलीज होके हिट कर रहा है, सो इट विल बाउंस बैक, इट विल बाउंस बैक। तब हम कहेंगे कि ये इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ये उसका वेलोसिटी 0 है, तो देन हम कहते हैं कि इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी और दोनों की कंजर्वेशन लॉस को हम यूज करते हैं, तो फिर हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 जिसके जरिए हम उसको हिट कर रहे हैं, उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी से दिस इज इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, और हम पहले से कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो 0 नहीं होगी, बल्कि अगर हम उसको इलास्टिक कोलिजन करते हैं और 4 और 5 को हम ग्लूड कर लेते हैं, तो फिर वो वेलोसिटी हमारी रिवर्स डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, कोई ना कोई होगी, लेकिन कम होगी, लेकिन होगी, ठीक है। दिस इज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी। So therefore, ball 4 and 5 move together as one object after the collision, while ball 1 bounces back from the collision with 1/3 of its original velocity. ठीक है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की एक हमारे पास एग्जांपल है बैलिस्टिक पेंडुलम। A ballistic pendulum is an apparatus used to measure the speed of the fast-moving projectile, such as bullet. A projectile of mass m was fired into a large block of wood of mass m2 suspended from some light wires. The projectile embeds in the block and the entire system swings through a height h. How can we determine the speed of the projectile from a measurement of h? ठीक है, ये एक ब्लॉक ऑफ वुड है, बुलेट को उस पे फायर किया जाता है। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बाय फाइंडिंग आउट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्लॉक दैट मूव्स एट सम हाइट, ठीक है। जैसे इसको हिट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी और ये एनर्जी इसको किसी खास हाइट तक ले जाएगी, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट सच अ रिलेशन दैट वी रिलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट टू द हाइट ऑफ द ब्लॉक, ताकि अगर हम हाइट ऑफ द ब्लॉक को मालूम करें तो हम इनिशियल जो बुलेट की वेलोसिटी है उसको हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में तकसीम कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। इनिशियली हम कहते हैं कि यहाँ एक परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। बुलेट आ गया, इसमें एम्बेड हो गया, इसके अंदर फंस गया, ठीक है, और दोनों m1 और m2 दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर गए, ठीक है। सो वी विल यूज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन हम यूज करेंगे, और फिर हम यहां से कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई काइनेटिक एनर्जी है इसकी, और इसको अगर हम रेफरेंस ले लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है, तो इस पॉइंट तक हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके कि यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई वो सारी काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके हम H और V को रिलेट कर लेते हैं। So by law of conservation of momentum, this is the VB that is equal to m1 v1a divided by m1 plus m2. इनिशियली जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो तो 0 है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ B. वेलोसिटी ऑफ B means
velocity of the bullet plus velocity of the block. और अगर हम काइनेटिक एनर्जी को मालूम करें KB, so that is equal to 1/2 m1 plus m2 vb square, और vb को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें तो v1a square divided by this, ठीक है। अब जो b और c है, ठीक है, उसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी दैट इज इक्वल टू 0, उसको हमने रेफरेंस लिया, और जब वो बिल्कुल एक्सट्रीम हाइट तक जाएगा तो वहां पर भी वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर 0 हो जाएगी, और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2। m1 इज द बुलेट, m2 इज द ब्लॉक, gh, ठीक है। तो यहाँ से हम v1 velocity of the bullet initially before the hitting the block, that is relating with the height of the block, ठीक है। so m1 और m2 हमें पता है, hb हम मालूम कर लेते हैं, gb हमें known है, so we can find out the velocity of the bullet, ठीक है। so this is one of the example of the inelastic collision, और आप देख रहे हैं कि कितना ये खूबसूरत एग्जाम्पल है कि हम हाइट के जरिए से वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को हम मालूम कर लेते हैं। जी सर, बहुत खूबसूरत एग्जांपल। समझ आ गई या नहीं? जी सर। अब बस कर दें सर, कितना पढ़ाना है आज? जी सर। थक गए, बस करें सर। और ये हमारे पास 2 डायमेंशन कोलिजन है, ये 2 डायमेंशन में हम उसमें कंपोनेंट में उसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। एक्स और वाई की फॉर्म में हम उसको स्प्लिट करते हैं। This is the example of 2-dimensional collision, ठीक है। ये फाइनल जो वेलोसिटी है उसके फिर आप कंपोनेंट बनाएंगे एक्स में और वाई में, ठीक है। तो यू हैव टू अप्लाई मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स में करेंगे तो इस वेलोसिटी के एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा, वाई में करेंगे तो इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। So it is just like the one-dimensional, but you have to resolve the momentum into x and y components.